عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو پتہ لگا کہ عیسائی جو خدا بنا رہا ہے وہ خدا کوئی اور ہے، وہ خدا ہمارا خدا نہیں، ہمارا خدا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ ابھی ہم کتابوں میں دیکھیں گے آپ، اور دوسرے جو ان کا دعویٰ ہے آپ ابھی دیکھیں گے مناظرے کے اندر کہ یہ لوگ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے شروع میں جیسا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھا ہے جس میں سنی اور وہابیوں کا مناظرہ چل رہا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ لوگ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے مناظرہ چل رہا ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کو ویڈیو کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ پڑھایا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا ہے، ہم لوگ بھی جانے یار کم سے کم شروع کیجیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، کیونکہ ہم آج آئے ہیں اس دن کیا ہوا۔ اللہ کی شان یہ تھی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اب عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو پتہ لگا کہ عیسائی جو خدا بنا رہا ہے وہ خدا کوئی اور ہے، وہ خدا ہمارا خدا نہیں، ہمارا خدا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ ابھی ہم کتابوں میں دیکھیں گے آپ، اور دوسرے جو ان کا دعویٰ ہے آپ ابھی دیکھیں گے مناظرے کے اندر کہ یہ لوگ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ وہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ جب اللہ نے یہ قرآن پاک میں نص قطعی سے بتا دیا تو اب یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ وہ خدا نہیں جو قرآن میں جس کے اوصاف بیان ہوئے، یہ وہ خدا نہیں جس کی صفت سچا ہونا ہے۔ یقیناً اگر کوئی خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ ہمارا خدا نہیں، اسی فرقے کا خدا ہوگا جو اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ یہ بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں پتہ یہ لگا ان ساری چیزوں سے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، اس کے صفحہ نمبر، یہ جو ابھی انہوں نے پڑھا، صفحہ نمبر 545۔ جی سنیے سن کے جائیے مول صاحب، سمیٹ لیے گا بعد میں کتابیں، ابھی سمیٹ لیے گا، 1 منٹ سن لیں ان کی بات، ہماری بات سن لیجیے۔ اور 9 بجے سے بتا رہے نا ہیں؟ ارے مول صاحب بتا تو دیجیے اپنے منہ سے ایک مرتبہ، پانی بعد میں پی لیجیے گا کہ صبح 9 بجے سے۔ اس پہ لکھا کیا؟ جی ٹائم نہیں لکھا۔ پڑھایا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا ہے، ہم لوگ بھی جانے یار کم سے کم شروع کیجیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، کیونکہ ہم آج آئے ہیں اس دن کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ 40 ہوا ہے، 8:40 ہاں دیکھیے ایسا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ بھائی خاموش ہیں، سنیں، کوئی بولے گا نہیں۔ جو بات وہاں پیش ہوئی تھی اسی کو میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے ہے، اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد۔ ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے۔ ایسے کو جس کا علم حاصل کیے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کی اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل ہے۔ ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگھنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا، پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا۔ کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور
मर्दी और जनी की दोनों अलामतें बिलफेल रखता है। समद नहीं, जौफदार फुक्खल है। सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। या कम अज कम अपने आप को पढ़ने दीजिए हमको। जी बोलने दो। क्या है? थोड़ा ऊपर से ले लीजिए, मुजलम हो गया होगा। समद नहीं, जौफदार फुक्खल है। सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। बताएं, फरमाएं। पूरा हो गया। इतराज कर रहे थे। या कम अज कम अपने आप को ऐसा बना सकता है, और यही नहीं बल्कि अपने आप को जला भी सकता है, डिबो भी सकता है, जहर खाकर या अपना गला घोंटकर बंदूक मारकर खुदकुशी भी कर सकता है। उसके माँ बाप, जोड़ू, बेटा सब मुमकिन है, बल्कि माँ बाप ही इसे पैदा हुआ है। रबड़ की तरह फैलता सिमटता है, ब्रह्मा की तरह चौमुखा है। ऐसे को जिसका कलाम फना हो सकता है, जो बंदों के खौफ के बाइस झूठ से बचता है कि कहीं वो मुझे झूठा ना समझ लें। बंदों से, ये जुमला यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं है, आप में कैसा है? छुपाकर से पहले फिर से पढ़े पिछले वाला जुमला। कौन सी लाइन है? वो मुझे झूठा ना समझ लें। बंदों से छुपाकर, उससे पहले क्या है? पेट भरकर झूठ बक सकता है। क्या है? हाँ, पेट भरकर। नहीं, उससे पहले बंदों से पूरा लिखा, यही होना चाहिए। कुछ वो तो हंस तो नहीं होगा, कुछ और होगा। बड़ा छुपाकर तो नहीं है। हाँ, बड़ा छुपाकर जैसे जबान होती है। चलिए, बड़ा छुपाकर पेट भरकर झूठ बक सकता है। अच्छा, ऐसे को जिसकी खबर कुछ है और इल्म कुछ। खबर सच्ची है तो इल्म झूठा, इल्म सच्चा है तो खबर झूठी। ऐसे को जो सजा देने पर मजबूर है, न दे तो बेगैरत है। माफ करना चाहे तो हीले ढूंढता है, खल्क की आड़ लेता है। ऐसे को जिसकी खुदाई की इतनी हकीकत कि जो शख्स एक पेड़ के पत्ते गिन दे उसका शरीक हो जाए। जिसने अपना सबसे बढ़कर मुकर्रब ऐसों को बनाया जो उसकी शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील हैं, जो चौहड़ों चमारों से लायक तमसील है। ऐसे को जिसने अपने कलाम में खुद शिर्क बोले और जा बजा बंदों को शिर्क का हुक्म दिया। और पढ़ें, लंबी हो जाएगी बात, और आगे बहुत है। यहाँ तक है, आपने ये यहाँ तक खत्म होगा है। जी जी, फरमाएं। इसका उन्वान नहीं पढ़ा आपने कि ये किसके खुदा की बात कर रहे हैं आला हजरत, ये आपने नहीं पढ़ा है। मैंने पढ़ा तो वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। वक्त हो गया पूरा। वहाबियों के झूठे खुदा, ये इसका उन्वान है। इसमें है कहीं लिखा हुआ? इसको पढ़ लीजिए, वहाबियों के झूठे खुदा, ये उन्वान है कि किस नहीं? लाइन में है? नहीं, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। आप लीजिए किताब, देख लीजिए। आप ये करीब निकालिए सर, ये जो है किताब कुरान निकालिए। जो इससे पहले है, हाँ? इसमें मतन में तो नहीं है। अच्छा, हाँ। आप में है क्या? आपका वक्त पूरा हो गया। हाँ, देखिए, इस पर मैंने कोई बात तो नहीं की, खाली मैंने इबारत सुना दी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहें? हाँ, इस पर कहिए ना। हाँ। देखिए, बात यह है, अव्वल तो ये बातें वजाहत के काबिल थी जो बातें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि इसमें टफ उर्दू है और समझना सबको जरूरी था, लेकिन बात जनरल लोग नहीं ज्यादा नॉलेज, इसलिए मैंने उसको वजाहत नहीं की। मेरा कहना ये है, इसमें वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। 2-3 लफ्जों ठीक है। बोल कर हो जाए। तो ये जो जुमले आगे कहे गए हैं, ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना, पेशाब करना, पखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना और लौंडेबाजी करना, खुदा के लिए ये इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ये तकाजा है, मेरा ये जो है आपसे दावा है, मेरा जो मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जो आगे भी बातें हैं देवबंदियों के खुदा कह करके आगे भी लाए हैं, उन सब चीजों के लिए मेरा मुतालबा आपसे ये है कि ये मौलाना अहमद रजा खान साहब ने वहाबियों का नाम लेकर के, देवबंदियों का नाम लेकर के अल्लाह ताला की शान में नाजेबा कलिमात, गालियों के जुमले जो उसको सुन करके हर शख्स कहेगा ये फौहश हैं और गालियां हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक इतराज ये है, इसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी साबित होती है। दूसरा इसमें दावा एक मेरा साथ में और है, वो ये है कि मान लेते हैं ये गुस्ताखियां कहीं लिखी हुई थी, ठीक है, और वो उसको नकल करने नाकिल है सिर्फ, तो मेरा उस पर एक ये एतराज है कि कोई शरीफ इंसान से जाए कि वो बुजुर्ग हो, अल्लामा हो, जिसको मुजद्दिद कहा जा रहा हो, अगर वो है तो बहुत ऊंचा हो गया वो,
ایک شریف انسان بھی کہیں اگر گالی گلوچ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ گالی گلوچ کے وہ جملے جو وہاں کہیں کہے گئے ہوں، بازاری جملے کہے گئے ہوں، ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہوں، وہ جملے اگر کہیں وہ بے عینی نقل کر رہا ہو تو ہر آدمی کہے گا یہ مولانا آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ غلط طریقے سے وہابیوں کے اوپر الزام لگا کر کے اور یہ غلط جملے، فحش جملے، گالیاں یہ اللہ کی شان میں کہنے کا ایک طریقہ نکالا انہوں نے، اور انہوں نے اللہ کو گالیاں دی۔ اس سے جو ہے ان کے ذمہ یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی ہے، بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، جس کا ثابت کرنا یہ ان کے ماننے والوں پر لازم ہے۔ اگر وہ ثابت بھی کر دیں پھر میرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہ فحش اور گالیوں کے جملے استعمال کرنا یہ شریف انسان کے لیے، اور چاہے کہ وہ اعلیٰ حضرت ہوں جن کو بزرگ مانتے ہوں ہم، ان کی زبان سے یہ جملے سننا یہ شرافت کے خلاف ہے۔ اب آپ ہاں ہو یہ آج مختصر وقت کے حساب سے ہاں نہیں، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، کم سے کم ریکویسٹ آپ نے مانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرات، آپ نے ابھی ہمارے فریق مخالف سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی مایناز کتاب فتاوی رضویہ سے ایک صفحے سے مستقل عبارات کا مجموعہ سنا۔ ہمارے فریق مخالف کا اس میں یہ دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی شان میں معاذ اللہ رب العالمین گستاخیاں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے انداز میں اس عبارت کو اپنے طور سے پڑھا، اور ان عبارات میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو اللہ رب العزت، وہ اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ رب العزت کہ جس کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، وہ اللہ رب العزت جسے نہ نیند آتی ہے، وہ اللہ رب العزت نہ جو ظالم ہے، وہ اللہ رب العزت نہ جو عیوب و نقائص میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ وہ ذات گرامی ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہوا علم ذاتی المستجمع لجميع صفات الکمال والمنزہ عن جمیع النقائص، یعنی اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ علم کلام کی کثیر کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ ہمارے فریق مخالف کو بھی اس تعریف پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کے لیے جب علماء کلام نے اور پوری 14 صدی کی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ قرآن پاک تنزیل من رب العالمین، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تو اب جب اللہ رب العزت عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس نے اب بندوں کو پیدا فرمایا۔ جب بندوں کو پیدا فرمایا تو ان میں کچھ تو فرما بردار بندے ہوئے اور کچھ بندے ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی شان میں گستاخیاں کی۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ اللہ رب العزت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، لیکن آپ دیکھیں عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، اللہ رب العزت کے جوڑ کے قائل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی اولاد مانا، اور کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کو اصلاً ہی نہ مانا، جیسا کہ آریہ سماج، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کوئی شے نہیں، وہ کوئی اس کا وجود نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فلاسفہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی خالق ہونے پر تو دلائل دیے، لیکن فرمایا اس کے ساتھ میں انہوں نے اللہ کی شان میں ایسی توہین آمیز گفتگو کی
फरीक मुखालिफ पर सब आया है। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। अब बताना यह है कि वो लोग जो दावेदार हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है, वो भी अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अल्लाह का बेटा भी माना। कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह मुस्तकिल नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को एक तो मानते हैं लेकिन उसकी जात के अंदर वो बातें चस्पा कर देते हैं जो हकीकतन उसका ताल्लुक उससे नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की जात में अपनी जानिब से बातों को बढ़ा देते हैं। तो अब तवज्जो ये करना है, इसके मुताबिक मालूम ये हुआ कि वो हकीकतन उस अल्लाह को नहीं मानते जो वहदहु ला शरीक है, उस अल्लाह को नहीं मानते जो लम यलिद वलम यूलद जिसकी शान है, उस अल्लाह को नहीं मानते कि जिसके बारे में अल्लाह ने खुद अपने बारे में फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी। उस अल्लाह को नहीं मानते कि जिसके में थोड़ा हदीसा भी है, कीला भी है, मौसाफ बाद में दौरान गुफ्तगू नहीं, मुनाज़रा में ये उसूल मुसल्लम है कि जब तक फरीक मुखालिफ की बात को ना सुने न करें वरना मुंह की खानी पड़ती है। आप नोट ये बात मुझे कहना नहीं पड़ी और सामईन ने आपका रद्द कर दिया, इसलिए तवज्जो रखें, हिम्मत से काम लें। आगे सुने तो ये वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कि जो अयूब व नकाइस से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं। अब अगर कोई ऐब पैदा करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब वो उस खुदा को नहीं मानता जो हकीकी खुदा है, उस वहदहु ला शरीक को खुदा नहीं मानता जिसने कायनात को पैदा फरमाया, जो अयूब व नकाइस से पाक है। इसका मतलब उसका खुदा कोई और है। इसको जब हम उसूल की रोशनी में देखते हैं तो देखें कि कोई भी शय होती है उसका एक वजूद होता है, और उस वजूद को चंद उसके लवाजिमात होते हैं, और लवाजिमात जब किसी शय के पाए जाएं तो फिर उस शय के लवाजिमात के मुक्तज़यात होने की वजह से अब उसके अंदर मुनाफात नहीं होती है। लाजिम जब पाया गया तो लाजिम की जिद तनाफी उसके अंदर नहीं पाई जाएगी, और जब अगर तनाफी पाई गई तो लाजिम नहीं पाया जाएगा, और लाजिम नहीं पाया गया तो असल शय नहीं पाई जाएगी। जब ये देख लिया आपने, तो सुन लिया, अच्छे से आपने समझ लिया, और आपकी नजरें अब इल्म कलाम की उन किताबों की तरफ दौड़ने लगी जो कि हमारे उलमाए मुतकल्लिमीन ने जिसमें बहस की है। आप उसकी रोशनी में अगर तवज्जो से और इंसाफ नजर से देखें तो इसकी अब 3 तरीके से किस्म होती है। 3 तरीके से इस सल्ब की अब किस्में होंगी। एक ये कि या तो असलन ही शय का वजूद न माना जाए, जैसे कहा जाए कि इंसान उसका कोई वजूद नहीं, या फिर शय को तो माना जाए लेकिन उसके लाजिम को ना माना जाए, और लाजिम किसी एक लाजिम को ना माना जाए। जैसे कहा इंसान हैवान नातिक है तो कहा जाए इंसान हैवान है, नातिक नहीं है। एक लाजिम को माना, दूसरे को नहीं माना। तीसरी शय यह है कि इंसान वजूद भी माना जाए शय का, लाजिम भी माना जाए, लेकिन लाजिम के साथ साथ उसकी मुनाफात जो है लाजिम की उसका इत्तिसाब कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, उसको साबित कर दिया जाए। अब ये कि पहले वाला के शय का असलन वजूद ही ना हो, जैसे कहे इंसान का कोई वजूद नहीं, इन मिसालों को अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में देखते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि अल्लाह का कोई वजूद ही नहीं माज़अल्लाह, जैसे कि आरिया कहते हैं, तो अब ये दूसरा ये कि कोई कहे अल्लाह का वजूद तो है लेकिन उसके जो लवाजिम हैं, उसकी सिफात जो वाजिब लिजाती ही हैं, जैसा कि सच बोलना, जैसा कि वो राज़िक है, जैसा कि वो गफ्फार है, जैसा कि वो सत्तार है, जैसे उसकी सिफात हैं। अब अगर कोई और सिफात को मानता है, अल्लाह के वजूद का इकरार करता है, लेकिन साथ ही ये कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, तो आप देखिए वजूद माना, शय का वजूद माना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद माना, लेकिन एक लाजिम का इनकार कर दिया। तीसरा ये कि आदमी वजूद को भी मानता है लेकिन उसके साथ उस मुनाफात को जिक्र कर देता है, उस शय को उसके साथ मुत्तसिफ कर देता है, मिला देता है जो उसकी शायान शान नहीं थी। जैसे कि इंसान अल्लाह को मानता भी है लेकिन साथ ही साथ ये कह देता है कि वो झूठ बोलता है या फिर वो चोरी करता है माज़अल्लाह। तो अब ये जो पहले वाला कि जिसने बिल्कुल एक इंसान का वजूद ही नहीं माना, अल्लाह का वजूद ही नहीं माना, वो अलग। ऐसे ही ये दो जो नीचे के हैं ये भी अगरचे वजूद मान रहे हैं लेकिन आगे जाके गुस्ताखी कर रहे हैं, आगे जाके लाजिम का इनकार कर रहे हैं, या फिर आगे जाके जो मनफी चीज है जो अल्लाह की शान शान है उससे मिला रहे हैं।
तो ये लोग भी गोया के पहले वाले की तरह हो गए जिसने असलन ही उस शय का इनकार कर दिया। गोया के ऐसा हो गया कि ये हकीकतन अल्लाह को नहीं मानता। अब आप कहेंगे वो कैसे, कि उस अल्लाह को नहीं मानता जैसे उसकी शान थी। अल्लाह की शान ये थी कि उसका कोई बेटा नहीं। अब ईसाइयों ने ये कहा कि अल्लाह का बेटा है, तो पता लगा कि ईसाई जो खुदा बना रहा है वो खुदा कोई और है, वो खुदा हमारा खुदा नहीं, हमारा खुदा नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि अल्लाह एक है, जैसा कि अभी हम किताबों में देखेंगे आप, और दूसरे जो इनका दावा है आप अभी देखेंगे मुनाजरे के अंदर कि ये लोग अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी? वो फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, उससे ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी? जब अल्लाह ने ये कुरान पाक में नस्से क़तई से बता दिया, तो अब ये कहना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये वो खुदा नहीं जो कुरान में जिसके औसाफ बयान हुए, ये वो खुदा नहीं जिसकी सिफत सच्चा होना है। यकीनन अगर कोई खुदा झूठ बोल सकता है तो वो हमारा खुदा नहीं, उसी फिरके का खुदा होगा जो उसको झूठा कह रहा है। ये बात बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाती है। अब हमें पता ये लगा इन सारी चीजों से कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये मेरे हाथ में फतावा रज़विया जिल्द 15 है, इसके सफा नंबर, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा सफा नंबर 545 है। ये मरकज़े अहले सुन्नत बरकात रजा पोरबंदर से जो छापा है उसका सफा बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने वहाबियों के झूठे खुदा होने की जो पूरी इबारतें पढ़ी, तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं फरमा रहे, सबसे पहला सेंटेंस ही आप लोग सुन लें, ये नहीं कह रहे हैं कि वो खुदा जो वाजिबुल वजूद है वो ऐसा है, वो खुदा जिसकी सिफात वाजिब लिजाती ही है वो ऐसा है, वो खुदा जो कायनात का पैदा करने वाला खालिक है वो ऐसा है, ये नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि उसी फिरके के साथ बयान कर रहे हैं जिस फिरके ने खुदा को जैसा समझा है, अपना खुदा जैसा उसने तराशा है। फरमाते हैं वहाबी ऐसे को खुदा कहता है, तवज्जो है आपकी, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है कि जो मकान, जमान, जिहत, माहियत और तरकीब अकली से पाक कहना बिदअत हकीकिया के कबील से। अब ये जो इबारत लिखी हुई है इनकी किताब के अंदर मौजूद है, साथ ही साथ आला हजरत ने उसी को बयान कर दिया। तो आला हजरत ने ये नहीं कहा कि उस खुदा की बात हो रही है जो हमारा सबका खुदा है, कायनात का पालनहार है, परवरदिगार है, नहीं। वहां भी ऐसे को खुदा कहता है जो झूठ बोल सकता है, वहां भी ऐसे को खुदा कहता है जिसके लिए मकान है, वहां भी ऐसे को खुदा कहता है उसके मुताबिक जिसके लिए जहद साबित है कि वो उसके लिए कहता है कि अल्लाह अर्श पर बैठता है, उसका मकान फौक है, जहद साबित करता है। ऐसे ही वहां भी ऐसे को खुदा कहता है जो उसके लिए जिस्म मानता है, हालांकि अल्लाह की शान ये है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी किसी शय से कोई मुमासलत नहीं, उसको किसी शय से कोई तशबीह नहीं दी जा सकती। अब ना उसके आज़ाए बदनी है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। जितनी भी आगे आला हजरत ने जो बातें बयान की हैं, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ये उस वाजिबुल वजूद की बात हो रही है, बल्कि आला हजरत ने लुज़ूमन ये बातें उन खुदाओं के लिए, उन लोगों के खुदाओं की बताई हैं कि जिन्होंने अपने एतबार से अपने खुदा तराश लिए हैं, जिन्होंने अपने एतबार से अपने खुदा बनाए हैं, बातिल अकीदे अपने एतबार से जिन्होंने गढ़े हैं, उन खुदाओं की बात आला हजरत गिनवा रहे हैं। इसलिए कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये कहेंगे कि उसकी सिफत ये है, उसकी जो सिफात है उसके अंदर मुमकिन बिज़ात है झूठ बोलना, माज़अल्लाह मुमकिन बिज़ात है। जब आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुमकिन बिज़ात मान लिया झूठ बोलना, तो अब आपने ऐब का दरवाजा खोल दिया। जब आपने, तवज्जो इधर देखें आप लोग, कर लें जी, जब आपने ऐब का दरवाजा खोल दिया कि झूठ बोल सकता है, और हम आपसे ये पूरा इस तरीके से हम सवाल करते हैं आपसे कि जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके लिए लुज़ूम साबित किए हैं कि ये लाजिम आएगा, ये लाजिम आएगा, क्योंकि आप तो अपने एतबार से खुदा बना रहे हो। तो जब आपने एक बुराई का दरवाजा खुदा के लिए मान लिया कि वो झूठ बोल सकता है, तो अब आपका वो खुदा हकीकी खुदा हमारा वाला नहीं। अब उसके अंदर चूंकि और ऐब भी, चूंकि उसके अंदर अब मुमकिन लिजात ही आप मान रहे हैं कि अब और भी ऐब उसके अंदर मुमकिन हो सकते हैं, और जब मुमकिन का दरवाजा खुलेगा तो ये आम है। आम किसका है? वाजिब लिजाती ही के खिलाफ ये आम हो जाएगा। जब अल्लाह की सिफात उसकी तरह नहीं मानोगे तो फिर इसका मतलब हर सिफत
जो बंदे के लिए आप मानते हो वो अल्लाह के लिए आप उसको शामिल करोगे। ऐसे ही हम आपसे सवाल करते हैं आखिर में, आप मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपने जब मुमकिन का दरवाजा खोल के अल्लाह को झूठा बताया और आपने ये सारी, अब आला हजरत ने जो लुजूम साबित किए हैं, ये भी लाजिम आएगा, ये भी लाजिम आएगा, ये भी, ये तो कम जिक्र किए हैं। अगर आप अपने कायदे के मुताबिक आएंगे तो आप हजारों और इसके साथ जोड़ सकते हैं। वो आपने नहीं जोड़े, ये आपकी अलग बात है। आपके कायदे के मुताबिक हजारों और जोड़ सकते हैं। आला हजरत ने तो कम लिखे हैं। बताना यह है, सवाल आपसे आखिर करते हुए ये खत्म कर रहा हूं कि आप एक भी लुजूम हटाकर दिखाएं। आप अपने मुताबिक जैसा खुदा आप तराशे हुए हैं, मानते हैं कायदे के मुताबिक, आप अपने अकीदे के मुताबिक आप एक भी लुजूम हटाकर दिखाएं। इसलिए कि आपने जब कह दिया मुमकिन लिजाती, अल्लाह की जात में मुमकिन है कि ऐब पाया जाए। अब ऐब कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब जब ऐब, और आपकी अलजोदुल मुकिल, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि बेशक हम अल्लाह के लिए झूठ और दीगर कबाएह को मकदूर तस्लीम करते हैं। झूठ और दीगर कबाएह, और कबाएह कहते हैं बुराइयों को। अब कितनी बुराइयां जितनी हो सकती हैं, अलजोदुल मुकिल में लिखा है कि सिर्फ झूठी नहीं, जितनी बुराइयां हो सकती हैं हम सबको अल्लाह के लिए मकबूल मानते हैं कि अल्लाह पाक इन पर कादिर है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आपका ये खुदा है? नहीं। क्या आपका ये खुदा है? नहीं। ये हमारा खुदा नहीं। इसलिए आला हजरत ने जिस खुदा की बात की है उसको अपने तौर पर तो आप खोलें बाबे तौहीद आला हजरत का। एक मिनट रुके, बाबे तौहीद खोले आला हजरत का। तो आला हजरत ने अल्लाह की उलूहियत पर जो दलाइल दिए हैं वो काबिल रश्क है, उनको पढ़ें आप, जिनका आपको भी एतराफ हुआ है। अब मैं बताने ही चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत, बस 2-4 मिनट में खत्म करिए। जी जी, बस 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, 15 मिनट 1 मिनट में। हमारा सवाल ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वाजिबुल वजूद है, उसके लिए कोई ऐब उसकी जात में नहीं है। जो ऐब मानेगा, मुमकिन मानेगा ऐब को, और कह रहा है कि सिर्फ खुदा ही, उस किताब में लिखा हुआ है, कहा गया कि सिर्फ झूठ ही नहीं, जितनी बुराइयां हैं वो सब अल्लाह में पाई जा सकती हैं। तो अब बुराइयां कितनी हैं आप देखें, मुआशरे में सैकड़ों बुराइयां हैं। आला हजरत ने सिर्फ 50 गिनवाई है। तो इसलिए बताना यह है कि इनकी किताब से हम ये साबित कर चुके कि दीगर बुराइयां भी अल्लाह में पाई जा सकती हैं, और आला हजरत ने वही लुजूम बयान करते हुए खत्म हो गया। वहाबियों के खुदा के अंदर ये लुजूम पाया जाता है। आला हजरत ने सिर्फ इसी को बयान किया। आला हजरत ने अपनी खुदा की बात नहीं की, बल्कि वहाबियों की खुदा की बात। चलिए ठीक, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन हम लोगों के सुनने में जो आया है, आपने सीधे कहा है कि आला हजरत ने कुछ मत कहिए। नहीं कहेंगे, जवाब समझ आगे नहीं, जवाब नहीं सुन होगा, जवाब नहीं देंगे, इसको खत्म करने का मतलब यही है। समेट लिएगा, 1 मिनट सुन ली उनकी बात। हमारी बात सुन लीजिए आप सुना। हमारा खुदा जैसा अभी बता गए हैं आला हजरत के, मतलब आपने बताया कि आला हजरत ने कहा है कि वहाबियों का खुदा ऐसा, जी। वो किस किताब में लिखा हुआ है? फतवा रिज़विया में लिखा भाई है। सुनने का मतलब तो यही है कि हम भी कुछ सीखें, आपसे सीखें, आपसे सीखें। ये फतवा रिज़विया में लिखा है, हाँ, उन्होंने दावा किया है ऐसा कि वहाबियों का खुदा ऐसा है। जी जी। हमारा इसमें कहना ये कि हमारा खुदा जो है वो क्या दूसरा है कोई क्या? अच्छा, जो खुदा बरेलियों का वो खुदा देवबंदियों का। तो आला हजरत ने या तो ये लिखा है, अगर वो दूसरे को खुदा मानते हैं- एक मिनट हम ये कहना चाहते सुनो भाई, हैं, बात या तो आला हजरत ने ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आला हजरत ने ये लिखा है कि जो हमारा खुदा है वो देवबंदियों का नहीं, देवबंदियों का खुदा इस कैटेगरी का है, या तो उन्होंने ये लिखा है, वो इनको साबित और करना या कहीं से ऐसा तो नहीं कि आला हजरत ने किसी किताब से ये नकल किया है। नहीं, ये अलग बहस है। सिर्फ ये है कि आला हजरत ने क्या- ये हम लोग दावा करेंगे, इसलिए हमारी इसकी बहस होगी, लंबी बहस। हमारी बहस इसी पे होगी ना, इसी पर बहस हमारी होगी। नहीं, बात नहीं हुई है। सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, और 9 बजे से बता रहे ना, हाँ, कल 9 बजे से। हैं? फोन नंबर उसमें अरे लीजिए। मौसा बता दो, दीजिए अपने मुंह से एक मरतबा जी पानी खा भाई आप जैसा कहे वैसे टाइम करा दिए, वरना घंटों पे जाता ही जा रहा है। इसमें बहुत हाँ, बहुत उस पे लिखा क्या? जी जी। वो टाइम नहीं लिखा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, मुकम्मल देखा होगा कि एक शिया ने ये दावा किया है कि अल्लाह का बेटा हो सकता है, और ये तो आपको मालूम है अल्लाह हर चीज़ से पाक है, ना उसका कोई बेटा है, ना बीवी है, ना
कुछ है वो हर चीज़ों से पाक है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। ये हर मुसलमानों का अक़ीदा होना चाहिए। अगर ये अक़ीदा नहीं है तो मुसलमान नहीं होता है, बल्कि वो अपने ईमान से हाथ धो बैठकर काफिर हो जाता है, मुसलमान से खारिज हो जाता है। ये अक़ीदा होना चाहिए दोस्तों कि अल्लाह एक है और हमेशा रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, देखकर समझ गए होंगे। अगर वीडियो को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।